Okay. Priya Bhayo Behno, Namo Buddhaya, Jai Bhim. It's really wonderful to see so many of my old friends and people who are on the Sangharam with us a year and a half ago. मेरे बहुत सारे जो पुराने मित्र हैं और 1.5 साल पहले संघाराम में जो लोग शामिल हुए थे उन सबको देखना बहुत ही अच्छा लग रहा है. I'm very pleased to see Mokshasara. और मुझे मोक्षसारा को देख के भी खुशी हो रही है. Sitting under her tree, I hope she's going to gain enlightenment there. तो अपने पेड़ के नीचे वो बैठी है और यहाँ पे उसको हो सकता है कि बुद्धत्व मिले. This is tamarind tree, not Why Bodhi not? tree. Each Buddha has his own tree or her own tree. Okay, they say ghost lives on this tree. तो वो कह रहे हैं कि हर बुद्ध का अपना एक पेड़ होता है, तो मेरा ये क्यों नहीं हो सकता, मतलब बुद्धत्व प्राप्ति के लिए. So I'm very aware that we're starting this retreat the day after the anniversary of Baba Saheb's birth. तो मुझे अच्छा लग रहा है कि बाबा साहब की जो वर्षगांठ थी, जन्मदिन था, उसके दूसरे दिन हम जो है ये शिविर की शुरुआत कर रहे हैं, हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं. And I think that's very, very significant. और मुझे लगता है कि ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है. In fact, I had a really strong dream about 2 months ago, in a way on this theme. और देखा जाए तो इस विषय को लेकर 2 महीने पहले मैंने बहुत ही मजबूत या सशक्त ऐसा एक सपना देखा था. You know, as Sadhanaratna said, I was on a solitary retreat for 4 months. I think he said 3 months, but I was there for 4 months. And even though you're in solitude, you're very aware of all your friends, all the people you're connected with. और जैसे कि साधना रत्न ने आपको बताया कि मैं एकांतवास में था, उन्होंने 3 महीने बताया, लेकिन मैं 4 महीने के लिए एकांतवास में था. और जब आप एकांतवास में होते हो तो आप अपने जो मित्र है, मित्र परिवार, दोस्त है, उनके में काफी जग होते हो. Yes, Mitra Parivar, indeed. And so in this dream, I was with a lot of my Indian friends. और इस सपने में मैं अपने बहुत सारे भारतीय मित्रों के साथ था. And the sense was that these were all my close friends from India, and it was sort of connected with the Sangharam. और ऐसा महसूस हो रहा था कि ये भारत से मेरे बहुत ही करीबी जो है मित्र है, और सब जो है संघाराम से जुड़े हुए हैं, उनका कुछ संबंध है. And we were, the actual place was somewhere in England, but it was people from India. तो जो जगह थी वो तो इंग्लैंड की कोई जगह थी, लेकिन जो लोग थे वो लोग भारत से थे. Unfortunately, Mokshasara, there's wind blowing on your microphone. I don't know whether you can protect it a bit because it's affecting the sound. Yeah. Yes. Maybe I can try using. Yes. Yeah. तो माइक्रोफोन पे बहुत हवा आ रही है, ऐसे वो बोल रहे, तो मैं कोशिश करके देखती हूँ अगर इससे कुछ फर्क पड़ता है. That would be good. Yeah. Yeah. Yes, immediately better. Yeah. Yeah, good. Actually, the sound is better too. Yeah, thank you. Yes, so we were all in this room, an English room, but all Indian people there with me. तो हम जो है इस अंग्रेजी कमरे में थे, लेकिन मेरे साथ जो है ये सारे जो भारतीय मित्र हैं वो साथ में थे. And Baba Saheb came in. और बाबा साहब आ गए. And he was very old. वो काफी बूढ़े थे. But he was quite sort of shining, quite radiant. लेकिन वो एक तरह से चमक रहे थे, उनके चेहरे पर आभा थी, तेज था. And he knew what we were doing. He knew we were there for intensive practice of the Dhamma.
और वो जानते थे कि उस कमरे में हम क्या कर रहे थे, तो उनको पता था कि हम धम्म का बहुत ही गहरा आचरण अभ्यास करने के लिए वहां पे एकत्रित हुए हैं। And in a very, very kind, sort of grandfatherly way, he uh, he told us how pleased he was that we were doing this. और बहुत ही दयालु शब्दों में, जैसे कोई दादाजी बात करते हैं अपने पोतों से, तो उन्होंने हमें उन शब्दों में, उस भाषा में बताया कि आप जो कर रहे हैं उसको देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। And he said that, you know, some people may not like what you're doing. They may criticize you for this. और उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि जो आप कर रहे हैं वो शायद कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगा और वो आपकी आलोचना भी करेंगे। But he said, don't worry. Uh, what you are doing is what needs to be done. लेकिन उन्होंने कहा कि चिंता मत कीजिए, आप जो कर रहे हैं उन्हीं चीजों को करने की आवश्यकता है। And don't worry about the criticism. और जो भी आलोचना हो रही है उसकी आप परवाह मत कीजिए। So you can imagine, I woke up with a wonderful feeling of a confirmation of what we're doing. और फिर आप देख सकते हैं कि मैं बहुत ही खूबसूरत ऐसी भावना के साथ जागा उस सपने में से, कि मुझे अच्छा लग रहा था कि जो भी हम कर रहे हैं उसके विषय में। Of course, it's a figure from my own mind, it's not Baba Sahib himself, I presume. Mm. तो निश्चित ही ये जो भी स्वप्न में मेरे सामने छवि आई थी, वो मेरे ही मन से उभर कर आई थी और वहां पर कोई बाबा साहब नहीं थे। But it for me confirmed my feeling of what we're trying to do. लेकिन उससे मुझे एक मतलब दृढ़ ऐसा विश्वास प्राप्त हुआ कि हम जो भी कर रहे हैं वो सही है। Because it seems to me that the great mission that Baba Sahib launched, especially in 1956, needs Dhammic depth. Mm. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो महान काम जो बाबा साहब ने 1956 में शुरू किया था, उसको बहुत ही मतलब धम्म की गहराई की आवश्यकता है। The political work, there's the social and cultural work is extremely important. तो जो राजनीतिक काम है, सामाजिक और सांस्कृतिक काम है, वो भी बहुत जरूरी है। But without Dhammic depth, it will just lose any connection with the Dhamma. Mm. लेकिन अगर उसमें धम्म की गहराई नहीं है, तो फिर धम्म के साथ कोई भी जो संबंध है वो खो देगा वो काम। It will lose its fundamental principles. Mm. और उसके जो मूलभूत तत्व है, उन तत्वों को भी वो खो देगा। So I feel that's our mission in this larger mission. तो मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारा बहुत बड़ा ऐसा मिशन है, बड़ा ऐसा काम है। So to make sure that the breadth of the work has the depth that can keep it stable and connected to the Dhamma. तो अगर इस काम को हर दिशा में बहुत ज्यादा फैलना है, तो उसको उतनी ही गहराई भी प्राप्त होनी चाहिए। And personally, I've decided that I'm going to dedicate what I have of life to that work. और मुझे ऐसा मैंने अपने लिए निश्चय किया कि मेरे जीवन में जो भी है, मैं उस कार्य के लिए समर्पित कर दूंगा। And in fact, in this retreat, that was strongly confirmed for me. और इस शिविर में मुझे और एक बार उस बात का यकीन हो गया कि मुझे क्या I'm, करना है। I'm not going to involve myself in institutions. I'm not going to involve myself in sorting out difficulties. तो किसी भी संस्थाओं में अब मैं अपने आप को शामिल नहीं करने वाला हूँ, या जो भी समस्याएं, मुश्किलें हैं, उनके समाधान में मैं अपने आप को शामिल नहीं करने वाला हूँ। Those are important, but that's not my task. Mm. तो वो भी बातें जरूरी है, लेकिन मेरा वो कार्य नहीं है। And yes, I want to make sure that there are enough of us practicing the Dhamma really deeply to make sure that Baba Sahib's great mission is really based on the Dhamma.
और मेरा काम ये रहेगा कि हम में इससे इतने लोग तैयार हो जो इस तरह से धम्म का आचरण करे कि बाबा साहब का जो कार्य है वो भारत में पूरा हो सके। So, as I think Sadhanaratna was saying, the origins of the Sangaram are in uh, something that he asked me. और जैसे साधना रत्न ने बताया कि ये संघाराम की शुरुआत जो है वो उन्होंने मुझे जो एक विनंती की थी उसमें से हुई थी। I think it was 2.5 years ago that he approached me at Bodh Gaya to say that he felt he wanted more clarity about how to go deeper in Dhamma practice, especially in meditation and study. और जैसे 2 या ढाई साल पहले मुझे लगता है वो बोध गया में वो मेरे पास आए थे और उन्होंने मुझे कहा था कि वो जानना चाहते हैं कि धम्म के आचरण में खास करके ध्यान में और धम्म अभ्यास में उसमें और गहराई किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। So I said, well, that is where my heart lies. That's what I want to do. और मैंने उनको कहा कि हाँ, मेरा दिल भी जो है इन्हीं बातों में लगता है और यही जो है चीजें मैं करना चाहता हूँ। And I'm willing to give what guidance I can, but I need people to be committed to this process. और मैंने कहा था कि जिस भी मार्गदर्शन की आवश्यकता है वो देने में मुझे बहुत खुशी होगी, लेकिन मुझे ऐसे लोग चाहिए जो सही में इसके लिए अपने आप को प्रतिज्ञाबद्ध कर सके। And in a way, what I want is a sort of a community of committed people to this process of deepening in a particular way. तो मुझे कुछ लोगों की मतलब ऐसे कम्युनिटी समूह या ऐसे कुल चाहिए जो बहुत ही गहराई से जो है इस काम के लिए अपने आप को समर्पित करे। And I said that I've got a clear idea of what we can engage with. और मैंने उनको बताया कि मेरे पास बहुत ही स्पष्ट ऐसी एक कल्पना है कि हम कौन से काम में अपने आप को लगा सकते हैं। There are other ways of doing this. I'm not saying this is the right way or the only way, but this is the way I think I'd like to explore. तो इसको करने के दूसरे भी कई तरीके हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही एकमात्र तरीका है या यही उचित तरीका है, लेकिन ये जो तरीका है इसमें मैं और ज़्यादा आगे जाना चाहता हूँ और कुछ खोज करना चाहता हूँ। So I said that I was willing to guide Sadhanaratna and, of course, members of his team that, as he told you, set up the order retreat. I was really willing to guide them if they were willing to commit themselves. और मैं बहुत ही इस बात के लिए मतलब तैयार था कि साधना रत्न जो है और उनकी जो टीम है, जैसे उन्होंने बताया कि जो संघ सदस्यों के लिए शिविरों का आयोजन कर रहे थे, उनको मार्गदर्शन करने के लिए इस क्षेत्र में। Perhaps the best way to put it is I'm willing to train them so they could train others. तो मेरा ऐसा था कि मैं इन लोगों को प्रशिक्षित करूँगा ताकि वो जो है फिर बाद में दूसरों को प्रशिक्षित कर सकें। So I thought the best approach would be one that comes to us via India, but originally via Tibet, but originally from India. तो मुझे ऐसा लगा कि इसको आगे ले जाने का फिर सबसे उचित मार्ग ये होगा कि वो परिप्रेक्ष्य जो आया तो तिब्बत से है, लेकिन जिसका उगम जो है वो भारत में हुआ है। So what we'll be doing is essentially Indian Buddhism filtered through Tibet. तो जो भी हम कर रहे हैं या सीख रहे हैं वो मूलतः भारतीय ही बौद्ध धर्म है, लेकिन वो आया हमारे पास तिब्बत के रास्ते से है। And the Tibetans, in passing this on, are quite clear who this came from in India. और जब तिब्बती लोग इसको सिखाते हैं तो वो बहुत ही स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख करते हैं कि ये शिक्षा भारत में कहाँ से आई है या ये भारत से आई हुई है। They're very keen to keep a sense of their lineage right back to India and right back to the Buddha. तो उनको ये बात बहुत ही मतलब इसमें रुचि होती है, गंभीरता से लेते हैं कि वो जो अपना वंश परंपरा जो है वो भारत के साथ
स्थापित कर सके, या खास करके बुद्ध के साथ, कि वो ये दिखाना चाहते कि ये वंश परंपरा जो है बुद्ध से ही चली आ रही है। So this system that we've been exploring uh, is from the very highest point of Buddhist culture in India. तो ये जो प्रणाली है जिसको हम देखने जा रहे हैं, तो वो भारतीय संस्कृति के एक बहुत ही मतलब चरम ऐसे स्थान में से आई हुई है। But we're very familiar with the Buddhism of Samrat Ashok's time. तो सम्राट अशोक के समय में जो बौद्ध धर्म था उससे हम बहुत परिचित हैं। And in India, most people sort of think of that as the greatest period. और भारत में बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि वो बौद्ध धर्म का महानतम ऐसा वक्त था, दौर था। But Buddhism continued to evolve in India for nearly another 1,000 years. लेकिन उसके बाद भी लगभग 1000 साल तक भारत में बौद्ध धर्म की उत्क्रांति होती रही, विकास होता रहा। And sometimes in India, people think of that later period as degeneration. और कभी-कभी लोगों को ऐसा लगता है कि वो जो उत्तर काल है अशोक के बाद का, उसमें बौद्ध धर्म का ह्रास हुआ था। It's not at all. लेकिन ऐसा नहीं है। From later periods, 8th, 9th, 10th, 11th century, Buddhism was really flourishing, the very highly developed culture. लेकिन 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं शताब्दी तक है जो है बौद्ध धर्म जो है बहुत ही मतलब फल फूल रहा था, उसका विकास हो रहा था, सांस्कृतिक विकास हो रहा था। And it had very great aesthetic depth. उसमें बहुत ही सौंदर्यात्मक गहराई थी। Also great intellectual clarity and sophistication. बहुत ही अच्छी बौद्धिक स्पष्टता थी और बहुत ही सुलझे हुए रूप से उसको सामने रखा जाता था। And many who were deeply experienced in the Dhamma. और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको धम्म का गहरा अनुभव था। And it's that form of Buddhism that went to Tibet. और ये जो बौद्ध धर्म है इस दौर का, वो बौद्ध धर्म जो है वो तिब्बत पहुंचा। And what you have in Tibet is largely Indian Buddhism of the Pala dynasty era. और अभी जो तिब्बत में बौद्ध धर्म मौजूद है वो भारत से है और पाल जो साम्राज्य था उस दौर का है। And it's very, very rich and very powerful. बहुत ही वो समृद्ध है और बहुत ही सशक्त है। We certainly don't want to take everything from that, but there's some तो very, उसमें very हर valuable बात things हमको there. नहीं लेनी, लेकिन उसमें कुछ मौल्यवान ऐसी चीजें जो हम देखने वाले। So, yes, this system that we're going to follow can be traced right back to India. तो ये जो प्रणाली है जिसका हम अनुसरण करने वाले हैं, उसका उगम जो है वो आप भारत में ही देख सकते हो। And it comes to us via our great teacher, Urgyen Sangharakshita. और हम तक वो जो है हमारे महान गुरु संघरक्षित के माध्यम से पहुंची है। And he received that teaching from one of his gurus, Kachu Rinpoche. और उनको ये शिक्षा उनके एक गुरु से प्राप्त हुई है जिनका नाम था कांचू रिम्पोचे। In fact, it was when he received this teaching in 1962 that he was given the name by Kachu Rinpoche of Urgyen. और देखा जाए तो 1962 में जब कांचू रिम्पोचे से संघरक्षित को ये शिक्षा प्राप्त हुई थी, तो उनको उनसे ये नाम भी मिला था, उर्गेन। So I've told the story before on the Sangharam, but I'll tell it again just to remind everybody.
तो ये कहानी मैंने संघाराम में पहले भी बताई है, लेकिन मैं फिर एक बार दोहराऊंगा ताकि सबको उसकी याद आ जाए। You remember Kachi Rinpoche was a very, very friendly Lama. तो आपको याद होगा कि काचू रिम्पोचे जो है वो बहुत ही ऐसे दोस्ताना किस्म के लामा थे। Most Tibetan Lamas, they sit and they wait for you to come to them. तो बहुत सारे तिब्बती लामा जो रहते हैं वो ऐसे बैठे रहते हैं और वो राह देखते रहेंगे कि आप उनके पास आओ। But he said that Kachi Rinpoche went out of his way to make friends with him. लेकिन काचू रिम्पोचे जो है उस परंपरा से को एक और रख दिया था और वो खुद आगे बढ़कर जो है उनसे दोस्ती करने के लिए आए थे। And he was a very remarkable man. He was from Tibet, but he was the chief of the abbot of the main monastery in Sikkim. तो वो काफी उल्लेखनीय ऐसे लामा थे, वो तिब्बत से थे लेकिन सिक्किम की एक जो बहुत ही बड़ा जैसा बौद्ध मठ है उसके वो प्रमुख लामा थे। Anyway, I won't tell you the whole story, but Kachi Rinpoche was asked by his guru, Jamyang Khyentse Rinpoche, who also was Bante's guru, to give him the Padmasambhava practice. तो पूरी कहानी तो नहीं बताऊंगा मैं, लेकिन काचू रिम्पोचे को जो है उनके गुरु ने Jamyang Khyentse Rinpoche. जामियन खेंसे रिम्पोचे ने कहा था, जो भंते के भी गुरु थे, कि उनको जो है पद्म संभव की साधना दे। So in 1962, Kachi Rinpoche came to Bante's Vihara in Kalimpong and gave him this Padmasambhava initiation. तो 1962 में काचू रिम्पोचे जो है वो कलिंगपोंग में भंते के विहार में आए और वहां पर उन्होंने उनको पद्म संभव की साधना दी। And during the course of the initiation, which I think took 3 days, well, interestingly enough, what's his name? Dorje, Mr. Dorje from Bodh Gaya, who we've often seen on platforms in Bodh Gaya. He was Kachi Rinpoche's nephew, and he was staying with Bante at that time. और ये बात बहुत ही रोचक है कि जब भंते को ये पद्म संभव की साधना दी जा रही थी, जिसके लिए 3 दिन लगे, तो उस वक्त दोरजे जो कि बोध गया में कई बार कई सामाजिक कार्यक्रमों में दिखाई देते हैं, वो वहां पे उपस्थित थे और वो जो है वो काची रिम्पोचे के भतीजे थे। Mr. Dorje is a retired IAS officer who is the secretary to the Mahabodhi Temple Management Committee. तो दोरजे साहब जो है वो निवृत्त IAS अधिकारी है और महाबोधि सोसाइटी के जो है सेक्रेटरी के पद पे वो कार्यरत थे। Anyway, one day Bante went into the bazaar to do the marketing. तो एक दिन बाजार में चले गए भंते अपना कुछ सामान खरीदने के लिए। He did that himself. और वो खुद ही मतलब सामान खरीदते थे अपना। And while he was there was an old Tibetan sitting by the side of the road with a number of objects that he'd brought with him from Tibet. और जब वो अपना सामान खरीद रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा तिब्बती व्यक्ति है जो वहां पे बैठा है और वो तिब्बत से कुछ चीजें लेकर आया था, वो बेच रहा है रास्ते के किनारे। Obviously very, very poor. और दिखने में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था कि वो बहुत ही गरीब है। Many Tibetans left Tibet when the Chinese invaded with almost nothing. और जब चीनी लोगों ने तिब्बत के ऊपर आक्रमण किया था तो बहुत सारे तिब्बती लोग जो है वहां से भाग निकले थे और उनके पास कोई भी चीजें नहीं होती थी, मतलब उनको कुछ लेकर आना नहीं होता था इतना। So this old man had some books and some other religious objects, and he was obviously desperate for money. और इस तिब्बती व्यक्ति के पास जो है कुछ किताबें थी और कुछ धार्मिक ऐसी चीजें थी और उसको बहुत ही मतलब पैसों की जरूरत थी। So Bante wanted to help him.
तो भंते उनकी मदद करना चाह रहे थे put his hands in his pocket and took out whatever money he had left over from marketing and just gave it to him. और उन्होंने जेब में हाथ डाला और सामान खरीदने के पास उनके पास जितना भी पैसा बचा था वो निकाला और उनको दे दिया And so that the old man gave him one of the books. और वो जो बूढ़ा व्यक्ति था फिर उसने अपनी किताबों में से एक किताब उनको दे दी It was one of those Tibetan books. I don't know whether you've seen them. They're two wooden blocks with long leaves in between them, paper leaves, leaves of paper in between. तो ये तिब्बती किताब थी मुझे नहीं पता आपने देखा या नहीं तो ऊपर और नीचे जो है लकड़ी का तख्ता होता है और बीच में जो है वो पत्तों के बने हुए पन्ने होते हैं In fact, that was the Indian system which went to Tibet. और वो भारतीय ही परंपरा थी किताबें लिखने की या बनाने की और वो तिब्बत में चली गई परंपरा Bhante couldn't read the Tibetan script. तो अब ये जो तिब्बती भाषा में लिखा हुआ था वो भंते पढ़ नहीं सकते थे So he didn't know what he'd been given. तो इसलिए उनको पता ही नहीं था कि उनको क्या दिया है उस व्यक्ति ने It was just his way of helping the old fellow. तो ये बस उनका एक तरीका था कि वो उस बूढ़े व्यक्ति की मदद करने का So he went back to the Vihara and showed it to Kachu Rinpoche. तो फिर वो विहार में लौट कर आए और फिर उन्होंने वो किताब काचू रिम्पोचे को दिखाई And Kachu Rinpoche looked at it and said, well, this is very, very remarkable. और काचू रिम्पोचे ने देखा उस किताब को और बोला कि ये बात बहुत ही अद्भुत है I'm giving you the Padmasambhava initiation. मैं आपको पद्म संभव की साधना दे रहा हूँ And you've come back with a book of a text that comes from Guru Padmasambhava. और आप जो है एक किताब लेकर आए हैं और जो किताब जो है पद्म संभव से ही आई हुई है The Tibetans take this sort of thing very seriously. तो तिब्बती लोग जो है इस प्रकार की चीजों को बहुत ही गंभीरता से लेते हैं So what was the text? तो वो जो किताब थी वो जो पुस्तक थी वो किस विषय में थी Well, it's a text called in Tibetan Tarpe Dilam. और तिब्बती भाषा में वो जो किताब थी या उसका जो विषय है उसको थारपे देलाम कहते हैं Tarpe means liberation or emancipation, freedom. तो थारपे का मतलब होता है मुक्ति विमुक्ति Of course, spiritual liberation, तो enlightenment. निश्चित ही ये जो मुक्ति है या ये जो स्वतंत्रता है वो आध्यात्मिक ऐसी स्वतंत्रता है And Dilam means lam means path, and Dilam means smooth or short path. और दिलाम का मतलब होता है लैम मतलब रास्ता होता है और दी का मतलब होता है कि बहुत ही जिसपे सहजता से चला जाता है जो उबड़ खाबड़ नहीं होता है इस तरह का रास्ता So Tarpe Dilam means the short or smooth path to liberation. तो थारपे दिलाम का मतलब होता है कि विमुक्ति तक ले जाने वाला छोटा और बहुत ही सहज ऐसा रास्ता And it describes the 5 Mula Yogas that we are engaging with. और उसमें 5 मूल योगा का वर्णन किया गया है कि जो हम सीखने जा रहे हैं या करने वाले हैं So you, dear brothers and sisters, are on the short or smooth path to enlightenment. तो आप भाइयों और बहनों बुद्धत्व के छोटे और सहज रास्ते पर हो Of course, it's as short as you make it. और निश्चित ही वो उतना छोटा है जितना छोटा आप उसको बनाओगे Some people take a very long time to go a very short distance. और कभी-कभी ऐसा होता है कि छोटा सा ही अंतर चलने के लिए कुछ-कुछ लोगों को बहुत लंबा समय लग जाता है And it's as smooth as your mind. और वो उतना सहज है जितनी सहजता आपके मन में होगी
So yes, you are practicing, you are on the smooth path to enlightenment in this Sangaram process. तो संघाराम की इस प्रक्रिया में आप बुद्धत्व तक जाने के एक सहज रास्ते पे हो, मतलब जो उबड़ खाबड़ नहीं है. I'll explain more, probably not today, about why it's so effective. और शायद आज तो नहीं, लेकिन मैं इस विषय में ज्यादा बाद में समझाऊंगा कि ये इतना परिणामकारक क्यों है. So Kachur Rinpoche gave Bante the teaching to practice this. तो काचू रिम्पोचे ने बंते को शिक्षा दी इसका अभ्यास करने के लिए. And he went through the text and translated it into English with Dada Rinpoche. और धारदो रिम्पोचे के साथ मिलकर उन्होंने वो किताब में जो भी लिखा था उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया. And it's the source, the basis for the practices that we have been doing in the Sangaram and that we'll be doing in these 2 weeks. तो संघाराम में जो भी हम अभ्यास करने वाले आने वाले हफ्तों में, तो उसका जो भी स्तोत्र है, जिसका जो भी उगम है, वो उसमें से हुआ है. Now, I want to stress that I've chosen this particular pattern of practice because I thought something quite definite was needed. तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने इस अभ्यास को चुना है क्योंकि मुझे ऐसे महसूस हो रहा था कि कुछ तो निश्चित ऐसे चीज की आवश्यकता है. And it may not suit you. तो हो सकता है कि ये अभ्यास आपके अनुकूल ना हो. You don't have to do it. और ये कोई जरूरी नहीं है कि आप उनको करें. There are other ways of following the same process. और इसी प्रक्रिया में से जाने के जो है दूसरे भी कई रास्ते हैं. So and it's not necessarily even the best. और ऐसा भी नहीं है कि यही रास्ता जो है वो सर्वोत्कृष्ट रास्ता है. So I want that to be clear about that. If you feel, well, no, this is not for me, that's okay. There are other ways of approaching. तो मैं इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये मेरे लिए सही नहीं है, तो ठीक है, क्योंकि दूसरे भी अन्य रास्ते हैं जिसको आप कर सकते हैं. But why I think it's so effective is because there's a very strong imaginative world that it puts you into. लेकिन मुझे क्यों लगता है कि ये क्यों परिणामकारक है, क्योंकि बहुत ही सशक्त ऐसी एक काल्पनिक दुनिया है जिसके ये आपको संपर्क में लेकर आता है. And in this imaginative world, you can develop very strong devotion. और इस काल्पनिक विश्व में आप बहुत ही सशक्त ऐसे भक्ति के भावों को विकसित कर सकते हैं. You can purify your mind. आप अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं. You can clarify your mind. आप अपने मन में स्पष्टता ला सकते हैं. You can develop very strong feelings of compassion. आप करुणा की बहुत ही सशक्त भावनाओं को विकसित कर सकते हैं. And there's a very deep significance to everything that you're doing. और आप जो भी कर रहे होते हैं कृति, उसका बहुत ही गहरा ऐसा महत्व होता है. And my feeling is that this may be very effective for you in India. और मुझे ऐसा लगता है कि भारत में आपके लिए ये बहुत ही परिणामकारक हो सकता है. Now behind this approach to practice, there is an approach to Vipassana. तो ये जो परिप्रेक्ष्य है, मतलब हमारे अभ्यास का, तो इसको जो है विपश्यना का संदर्भ प्राप्त हुआ है. Vipassana is Vipassana. It doesn't matter how you attain it. It's the same, whatever it is.
however you तो do it. विपश्यना विपश्यना है, आप विपश्यना की अवस्था तक कैसे पहुंचते इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप बस वहां तक पहुंचते हैं। But I want to briefly explain to you the particular way that this system thinks about vipassana. लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो प्रणाली है किस तरह से विशेष रूप से विपश्यना के विषय में सोचती है। And it may be that on a future Sangaram we'll explore this much more fully. और हो सकता है कि भविष्य के जो संघारा में उसमें हम इस बात को और भी गहराई से समझने की कोशिश करें या देखें। So this system comes from the Vajrayana, the third phase of Buddhism in India. तो ये प्रणाली जो है वज्रयान से आई हुई है, जो बौद्ध धर्म के विकास का जो है वो तीसरा चरण थी। Each of the yanas has its own particular way of talking about and approaching vipassana. तो हर यान का जो है अपना एक परिप्रेक्ष्य है और बात करने की अपनी एक शैली है विपश्यना के बारे में। So in the so-called Hinayana, that what's represented by the Theravada today, the Pali Canon and the texts in Sanskrit that are equivalent. तो हीनयान में जो कि पाली में है और जिनको संस्कृत के जो ग्रंथ है उनके उनके समकक्ष माना जाता है। Because there are equivalents to the Pali Canon that have survived, well, now in Chinese, somewhat in Tibet, and so on. तो ये पाली ग्रंथों के ही मतलब समकक्ष है जो कि चीन में या अन्य भाषाओं में जो है वो सुरक्षित रह पाए हैं। So what's the main emphasis of vipassana in the Pali tradition? तो पाली जो परंपरा है उसमें जब विपश्यना की बात की जाती है तो किस बात पे जोर दिया जाता है? Well, it's you could say the three lakshanas and praticca samuppada. तो आप कह सकते हैं 3 लक्षणों के ऊपर और प्रतीत्य समुत्पाद के ऊपर। So especially anatta is the concern, the preoccupation that you engage with in Pali practice. तो खास करके जो है अनता के ऊपर जो है आप अपना ध्यान केंद्रित करते हैं अगर आप पाली सूत्रों के अनुसार आगे बढ़ते हैं। So what is the approach in Mahayana? तो महायान में फिर इसको किस प्रकार से देखा गया है विपश्यना? It's principally shunyata. तो फिर वहां पर ये प्रमुख रूप से शून्यता है। In Hinayana, you're trying to recognize that there is no Atman. तो हीनयान में आप खास करके इस बात को जानने की कोशिश कर रहे हैं या इसका साक्षात्कार करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी स्थायी ऐसा आत्मा नहीं है। In the Mahayana, your concern is with seeing that everything ultimately is shunya. तो महायान में आप ये प्रयास कर रहे हैं कि आप अंतिमतः इस बात को देखें कि हर चीज जो है वो अंतिमतः शून्य है। Actually, they're exactly the same. Anatta means shunyata. Shunyata means anatta. और देखा जाए तो ये दोनों बातें जो है लगभग एक जैसी ही है। अनता मतलब ही शून्यता और शून्यता मतलब ही अनता। But each of them represents a slightly different approach. लेकिन दोनों ही बातें जो है थोड़ा थोड़ा जो है अलग परिप्रेक्ष्य दिखाती है। In England, all the roads eventually lead to London. अब इंग्लैंड में देखा जाए तो सारे रास्ते जो है आखिर में लंदन तक ही पहुंचते हैं। We have the M1, the M2, the M3, the M4, the M5, the M20, etc. तो हमारे पास रास्ते हैं जिसका नाम M1, M2, M25 वगैरह वगैरह है।
Not the M25 because that goes round and round London, but the M20. तो Never mind. M20 तक, M25 नहीं, क्योंकि वो लंदन के गोल 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 घूमता रहता है, तो So it doesn't- M20 तक। It doesn't matter which road you're on, you come to London. तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कौन से रास्ते से जा रहे हैं, आप आखिर में लंदन पहुंच जाते हैं। So you can see what I'm saying. If you contemplate anatta, you come to wisdom, to prajna. तो आप देख सकते हैं कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप अनता के ऊपर चिंतन करते हैं तो आप प्रज्ञा तक पहुंचते हैं। If you contemplate shunyata, you come to prajna. और अगर आप शून्यता के ऊपर चिंतन करते हैं तो आप प्रज्ञा तक पहुंचते हैं। So I want to make this point very clearly, firmly and clearly. There's no difference ultimately in where they bring you. तो ये इस बात को मैं बहुत ही मजबूती से और बहुत ही स्पष्ट रूप से आगे रखना चाहता हूँ कि अंतिमता वहां पर ऐसा कोई भेद नहीं है, फर्क नहीं है। So what is the approach of Vajrayana to Vipassana? तो विपश्यना को लेकर फिर वज्रयान का क्या परिप्रेक्ष्य है? Well, Vajrayana looks at the luminous nature of mind. तो वज्रयान जो है मन के तेजस्वी स्वभाव की ओर देखता है, Or you could say that the luminous nature of awareness. या आप ऐसे कह सकते हैं कि जो जागृति का जो तेजस्वी स्वभाव है उसकी ओर देखता है। This actually goes back to the Pali Canon, but they particularly are concerned to discover mind's true nature. तो ये बात पाली जो है ग्रंथों से ही आती है, लेकिन यहाँ पर वो विशेष रूप से इस बात की ओर उनका ध्यान केंद्रित है। Come again, Subhuti. They're particularly concerned to see the true nature of mind. तो यहाँ पर जो है वो मन का जो वास्तविक स्वभाव है उस स्वभाव को वो देखना चाह रहे हैं। And what they say is when you discover the true nature of your own mind, you'll find that it is luminous, clear, wise. और जब आप मन के अपने वास्तविक स्वभाव को देखते हैं तो आप देखते हैं कि वो तेजस्वी है, स्पष्ट है और वो बहुत ही प्रज्ञावान है। Of course, it's also anatta and it's also shunya. और निश्चित ही अनता भी है और वो शून्य भी है, मतलब मन का स्वभाव। So I realize this is very brief and I haven't really explained what it means. तो मुझे पता है कि ये बहुत ही संक्षेप में है और मैंने पूरी तरह से नहीं समझाया कि इसका पूरा मतलब क्या होता है। Because in a way, we're not ready to see what it means. और ये ऐसा भी है क्योंकि हम खुद तैयार नहीं है इस बात को देखने के लिए या समझने के लिए कि उसका अर्थ क्या है। We need to go through preparation. तो उसको देखने के लिए हमें तैयारी करनी पड़ती है, एक तैयारी से होकर गुजरना पड़ता है। And that preparation will gradually bring us to the point where we can see the true nature of our own minds. और ये जो तैयारी हम करेंगे वो अंतिमतः हमें ऐसे स्थान तक पहुंचाएगी जहाँ पे हम मन का जो है वास्तविक स्वभाव क्या है उसको देख पाएंगे। Don't worry, we will explore all this later, but at the moment, I just wanted to give you an idea of where we're going. तो चिंता मत कीजिए, ये बातें हम बाद में देखने वाले हैं। मैं आपको सिर्फ इतना बताने चाह रहा था कि हम जा कहाँ रहे हैं। All the practices we're going to be doing are preparing you to see the true nature of mind itself. तो जो भी अभ्यास हम करने वाले हैं वो आपकी जो है तैयारी कर ले रहे हैं ताकि आप देख पाएं कि मन का वास्तविक स्वभाव जो है वो क्या है। Of course, it's not really your mind at that point. और निश्चित ही जब आप उसको देखते हैं तो उस वक्त वो आपका मन नहीं होता है, Because it's anatta.
क्योंकि वो अन्यता है, तो आपका मन नहीं हो सकता हो। But beneath your ordinary consciousness is mind itself, mind in its true nature. तो आपकी जो सर्वसामान्य जागृति होती है या सजगता होती है, उसके तह में या उसके नीचे जो है वास्तविक मन होता है। It's not some other mind that you get when you get enlightened. तो ऐसा नहीं होता है कि जब आपको बुद्धत्व प्राप्त होता है तब आपको दूसरा कोई मन प्राप्त होता है। It's that this mind that you have now reveals its true nature. तो ऐसा होता है कि ये जो मन अभी इस वक्त आपके पास है, वो मन जो है अपने वास्तविक स्वरूप को प्रकट करता है। But you can't see it because you're not ready. लेकिन आप उसको देख नहीं सकते क्योंकि आप तैयार नहीं है। So these practices that we're going to be following on the smooth path are to bring us all to the point at which we can see the true nature of mind itself. तो इस सहज रास्ते पर चलते हुए जो भी हम अभ्यास करने वाले हैं वो इसके लिए है कि हम उस स्थान तक पहुंच पाए जहां से हम अपने मन के वास्तविक स्वभाव को देखने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। So if you can't follow what I'm saying, well, maybe you can just take that point. तो अगर मैं क्या बोल रहा हूँ ये आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ये एक बात जो है इसी को आप ध्यान में रख सकते हैं। We're preparing ourselves, preparing our minds so that we can see the way things truly are. तो हम जो है अपने मन की तैयारी कर रहे हैं, उसको प्रशिक्षित कर रहे हैं ताकि हम देख सके कि चीजों का वास्तविक स्वरूप क्या है। Well, over these next 2 weeks, no, next 14 days or whatever, we're going to be looking at all the different practices. तो ये जो आने वाले 2 हफ्ते हैं, 14 दिन, तो इनमें हम इन सारे ही अभ्यासों को देखने वाले हैं। But I'm mainly going to focus on one practice. लेकिन मैं खास तौर पे एक ही अभ्यास के ऊपर जो है वो ध्यान केंद्रित करने वाला हूँ। In the morning, you're going to be doing the prostration practice. सवेरे जो है वो आप दंडवत साधना करने वाले हैं। And I really hope that you're going to have enough time to do maybe 300 prostrations a day. और मैं ऐसे उम्मीद कर रहा हूँ कि आपके पास पर्याप्त समय हो कि आप पूरे दिन में कम से कम 300 दंडवत कर पाएं। Minimum 100. कम से कम 100 or 108. या 108। So you've got 8 stepneys, just in case some were not proper. तो फिर 8 आपको और चाहिए, तो हो सकता है कि जब 100 कर रहे हैं आप तो उसमें कुछ आपके बिगड़ गए हो। But I hope you'll do 300. What's 3 8s? 24, is it? No. Somebody who knows mathematics, what is it? 3 8s are 16. 24. 24. I was right 3 first time. Yes, so 324. That would be a good minimum. तो 324 जो है वो आपको करने हैं, वो कम से कम उतनी दंडवत साधना आपको पूरे दिन में करने हैं। Because if there's no going for refuge, if you're not going for refuge fully and effectively, none of the other practices will make any difference at all. तो क्योंकि ये शरणगमन की साधना है और अगर आप पूरी तरह से और परिणाम कारक रूप से शरणगमन नहीं कर रहे तो बाकी किसी भी अभ्यास का कोई भी परिणाम नहीं होने वाला है। But I'm going to concentrate on the second of the Mula Yogas in the usual listing, which is the bodhicitta practice.
लेकिन मूल योगा की जो सूची है उसमें जो दूसरा अभ्यास बताया गया है जो कि बोधित चित्त का अभ्यास है, उसके ऊपर मैं अपना ध्यान केंद्रित करने वाला हूँ। We may even do that every morning throughout the retreat. तो हो सकता है कि पूरा शिविर मतलब समाप्ति तक पहुंचने तक हम उसको रोज करें एक सत्र में सवेरे। And in my talking session, I will take you through a text which explores how you can use bodhicitta in your daily life. और प्रवचनों का जो मेरा सत्र होगा उसमें मैं इस विषय पर बात करने वाला हूँ कि बोधि चित्त को जो है वो आप रोज के जीवन में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। So I'm going to give you work that you can do wherever you are. तो मैं आपको काम देने वाला हूँ कि आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो वो वहां पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। In your daily life, you will encounter various other people, you will encounter difficulties. तो आपके रोज के जीवन में आप बहुत सारे लोगों से मिलेंगे, आपका बहुत सारे मुश्किलात से सामना होगा। You're not on a retreat at a retreat center, you're at home. तो किसी शिविर केंद्र में आप शिविर में नहीं हो, आप घर पर हो। Or I think some people are on retreat at Baja, but mostly people are at home. तो मुझे लगता है कि कुछ लोग भाजा में शिविर में हैं, लेकिन अधिकतर लोग जो है वो घर पर है। So I'm going to look at a text that explores how you can apply your practice of bodhicitta to the everyday life. What happens over breakfast? What happens with your तो children? हम And all that. अब अभ्यास में इस विषय में देखने वाले हैं कि बोधि चित्त का ये जो आपका अभ्यास है, ये आप रोजमर्रा के जीवन में किस तरह से उसका उपयोग कर सकते हैं, बच्चों के साथ, घर पे, अन्य चीजों के साथ। So this will give you some very, very powerful and valuable material to practice outside the meditations. तो ये बहुत ही जो है मूल्यवान सशक्त ऐसे आपको साधन देने वाला है कि ध्यान के बाहर भी जो है आप इसका अभ्यास कर सकें। I really like to ask you all to commit yourself to making everything you do during these 14 days into part of the retreat. और मैं आपसे ऐसा भी मतलब चाहूंगा कि अगले जो 14 दिन में आप जो भी करने वाले हैं दिन भर में, उसको आप इस शिविर का हिस्सा बनाइए। And I hope to be able to show you through this text how you can do that. और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये जो विषय जिसका हम अभ्यास करेंगे उसमें मैं आपको बता पाऊँ कि ऐसा हम किस प्रकार से कर सकते हैं। But I'd like at this point to ask you all not just to turn up for the lectures or turn up for the meditations, but to think of everything you're doing as part of the retreat. तो मैं ऐसा नहीं चाहता कि आप जो है सिर्फ साधना करने के लिए आए या फिर आप सिर्फ सत्रों को सुनने के लिए आए, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसको आप इस शिविर का हिस्सा बनाइए। Don't just think, well, instead of watching a Hindi movie, we'll watch Subhuti. तो ऐसा मत सोचिए कि चलो हिंदी मूवी तो मैं देखने वाला था, उसके बजाय जो है मैं सुभूति को देख लेता हूँ। Even though Mokshasara and Subhuti's Jugalbandi is not really nearly as good as the Hindi movies songs. तो अगर हिंदी पिक्चर के गाने जो है उतने अच्छी नहीं है सुबुद्धि और मोक्षधारा की जुगलबंदी। Uh, uh, it's not just some entertainment. तो ये We're कोई doing. मनोरंजन की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। What we're going to be doing is for all the time of these 2 weeks. तो जो हम करने वाले हैं वो इस 2 हफ्तों के पूरे समय के लिए, मतलब 24 घंटों के लिए। We're inviting you to join discussion groups.
तो हम आपको निमंत्रित कर रहे हैं कि चर्चा के भी जो सत्र हैं, गुट चर्चा जो है उसमें भी आप शामिल होइए। But let's not call them discussion groups. लेकिन हम उससे जो है वो ऐसे गुट चर्चा वाले गुट नहीं कहेंगे। It's not just, theory and ideas and concepts just being exchanged, yeah? तो ऐसा नहीं है कि कोई तत्व है और संकल्पनाएं हैं और कल्पनाएं हैं जो शब्दों के माध्यम से आप वहां पर प्रस्तुत कर रहे हैं। Let's think of them as practice groups. तो हम उसको जो है सराव के या हमारे अभ्यास के गुट ऐसा कहेंगे। Even though each group will have a leader, it's not the leader teaching everybody else. तो भले ही हर गुट का जो है वो एक लीडर होगा, उसका नेतृत्व करने वाला व्यक्ति होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वो व्यक्ति ही दूसरों को चीजें सिखाएगा। It's a question of each of us uh, sharing our experience of applying the teachings and practices we're doing to our daily life. तो वहां पे जो है हम सभी अपना अनुभव साझा करेंगे कि जो भी हम अभ्यास सीख रहे हैं या जो भी हम अभ्यास कर रहे हैं उसका जो है जब रोजमर्रा के जीवन में हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर उसका अनुभव क्या है। That's what the practice groups will be about. और ये जो गुट होंगे वो इसी के लिए होंगे। So I'd like you to start right from now, sort of trying to see what's going on around you and how that's affecting your mind. तो मैं चाहता हूँ कि आप अभी से शुरू किए और करें और आप लिख भी सकते हैं कि आप देखें कि आपके आजू बाजू जो है क्या चल रहा है, क्या हो रहा है और उसका आपके मन के ऊपर किस प्रकार से परिणाम हो रहा है And how your mind affects what's going on around you. और किस प्रकार से आपका मन भी जो है इस बात के ऊपर परिणाम करता है कि आपके आजू बाजू में क्या हो रहा है। So please, over these next days, explore that, and in your groups tomorrow, explore that. तो कृपा करके जो आपके गुट रहेंगे कल से तो उसमें इन चीजों को और गहराई से देखने की कोशिश कीजिए। Tomorrow morning, you of course do the prostration practice. कल सवेरे निश्चित ही आप दंडवत साधना करेंगे। Then I will lead a meditation. उसके बाद मैं ध्यान का नेतृत्व करूंगा। And in that meditation, we're going to look at what are known as the outer preliminaries. और उस ध्यान में हम जो बाह्य प्राथमिकताएं है उनको देखने वाले हैं। Which are intended to motivate you very strongly to go for refuge. और जिनका उद्देश्य ये है कि आपको शरण गमन करने के लिए बहुत ही सशक्त रूप से प्रेरित करें। And then in the talk, I will talk a little bit more about the 5 Mula Yogas, the inner preliminaries, and how they help you prepare your mind so that you can see its true nature. और फिर जो प्रवचन का सत्र है उसमें जो है वह मूल योगा के विषय में बात करूंगा और मैं जो है आंतरिक प्राथमिकताएं जो है उसके विषय में बात करूंगा। So I think that's enough for today. तो मुझे लगता है कि आज के लिए इतना पर्याप्त है। But I've already given you some work. लेकिन मैंने पहले ही आपको करने के लिए कुछ काम दे दिया है। Don't just switch off and forget the retreat. तो ऐसा नहीं करना है कि अभी बंद कर देना है इस सत्र को और इस शिविर के विषय में भूल जाना है। In coming on retreat, there's a slight shift in your attention. तो जब आप शिविर में आते हैं तो आपका जो ध्यान होता है वो थोड़े देर के लिए जो है वो अपना स्थान बदल देता है। So try to start seeing how what goes on around you affects your mind.
तो आप देखने की कोशिश कीजिए कि आपके आजू-बाजू में जो भी कुछ हो रहा है उसका आपके मन के ऊपर क्या परिणाम हो रहा है and how your mind affects what's going on around you. और किस प्रकार से आपका मन जो है आपके इर्द-गिर्द की चीजों को प्रभावित कर रहा है। Because the two are linked. There's a cycle. क्योंकि ये दोनों भी चीजें जो है आपके आजू-बाजू की और आपका मन ये एक इनके बीच में एक कड़ी है, वो आपस में जुड़े हुए हैं। And it may be that tomorrow afternoon in your practice group, that's something you can explore. और फिर कल दोपहर का जो आपका चर्चा वाला सत्र होगा उसमें आप इस बात को फिर देख सकते हैं गहराई से। But that'll do for now. तो अभी के लिए इतना काफी होगा। It's very, very good indeed to see you all. तो आप सबको देख के बहुत ही अच्छा लगा And I'm really delighted to be back in India. और भारत में वापस लौटकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। Even though I may not even be able to come to India in June because of the condition in India of the virus. तो हो सकता है कि मैं जून में भारत में नहीं आ पाऊँ क्योंकि भारत में जो वायरस की स्थिति है उसके कारण। It seems that the news is still very bad indeed. और ऐसा लगता है कि अभी तक जो है उतनी अच्छी खबरें नहीं आ रही। In Britain, because it's a wealthier country and it's much easier to organize these things, more than 60% of the population has received the vaccine. क्योंकि ब्रिटेन में वो एक समृद्ध देश भी है और चीजों का नियोजन भी बहुत अच्छा है, तो लगभग 60% लोगों को अब तक जो है वो वैक्सीन मिल चुका है। And the virus is dropping very, very fast. और जो वायरस का जो असर है वो बहुत ही तेजी से कम हो रहा है। But the difficulties in India are huge because of the economy, because of the लेकिन nature of the situation. Yeah. Mm. लेकिन भारत की जो परिस्थिति है उसकी वजह से भारत में चीजें जो है बहुत ही मुश्किल है और बहुत सारे मुश्किलात हैं। But I hope you're all staying safe, and at least we will be meeting in this way. लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग जो है वो सुरक्षित रहेंगे और इस प्रकार से हम मिलते रहेंगे। And actually, even though we're meeting through this highly artificial medium, we can meet. और भले ही ये बहुत ही मतलब कृत्रिम तरीके से या कृत्रिम माध्यम से हम मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी हम मिल सकते हैं। Because when we become aware of each other, we meet. क्योंकि जब भी हम एक दूसरे के विषय में सजग होते हैं तो उसका अर्थ यही होता है कि हम एक दूसरे से मिल रहे हैं। That's the most important thing. We can be meeting even though physically we're not present. तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिसका अर्थ होता है कि हम मिल रहे हैं भले ही हम शारीरिक रूप से एक दूसरे के सामने उपस्थित नहीं है। But I'll see you tomorrow morning for meditation. मैं कल सवेरे आपसे मिलूंगा ध्यान के लिए। I will welcome you to our shrine room. और हमारा जो पूजा स्थान है मैं वहाँ पे आप सबका स्वागत करूंगा। Quite a few of you have been there. आप में से कुछ लोग जो है वो वहाँ पर आ चुके हैं। I can immediately see Viveka Ratner and Achla Dhamma and Mokshasara, of course, Sadhana Ratner and Maitrajit, and I hope many more of you will come in the future. तो जितने लोगों के उन्होंने नाम लिए वो सब उस पूजा स्थान में जा चुके हैं और वो उम्मीद कर रहे हैं कि आप में से और भी बहुत सारे लोग भविष्य में वहां पर आएंगे। And you're all very welcome tomorrow morning. और कल सवेरे आप सभी का वहां पर बहुत बहुत स्वागत है। But put on a good coat because it's cold. लेकिन कुछ अच्छा सा कोट पहन के आइए, मतलब ताकि आपको ठंडी नहीं लगे क्योंकि यहाँ पर बहुत ठंड है। Probably it'll be about -2 degrees.
तो यहाँ पर जो है -2 √2 का जो है वो तापमान है, 0 से 2 डिग्री नीचे। Good. See you tomorrow. Jai तो Bhim, कल Namo Buddhaya. आपसे मिलेंगे।